Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Let's start our today's lecture. In previous lecture we had studied about the compression members. We had an introduction of compression members. In today's lecture we will study what are the AISC requirements for the design of compression members. And the basic requirement for compression members are covered in chapter E of the AISC specification. AISC स्पेसिफिकेशन का जो चैप्टर नंबर ई है वो कंप्रेशन मेंबर्स को डील करता है. The nominal compressive strength of a compression member is given by this formula. Pn is equal to FCR-Ag. This equation is given in chapter E of the AISC specification. Here Pn is the nominal capacity of the compression member. FCR is the critical stress corresponding to critical buckling load, and Ag is the gross area of the compression member cross section. For LRFD, the basic design equation is Pu should be less than or equal to phi C Pn, where Pu is the sum of factor loads. Pu जो है वो load effect है. Phi C is the resistance factor for compression. Strength reduction factor or resistance factor for compression is 0.9, and phi CPN is the design compressive strength. Nominal strength multiplied by resistance factor or reduction factor is called the design strength. So in this case, phi CPN is the design compressive strength of a compression member. So according to LRFD basic design equation, the sum of load effects should always be less than design compressive strength. For ASD, allowable sum of factor loads, sum of service loads should be less than or equal to allowable compressive strength. Here PA is the sum of service loads, Pn is the nominal capacity of the compression member, and omega C is the safety factor for compression, which is 1.67, similar to tension member. And Pn over omega C is the allowable compressive strength of the compression member. In order to present the AISC expressions for critical stress FCR, we first define the Euler load as PE is equal to pi square EA over KL और R square. के AISC जो इक्वेशंस हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए, क्रिटिकल स्ट्रेस की जो इक्वेशंस हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम जो फर्स्ट सबसे पहले यूलर लोड को जो है वो डिफ़ाइन करते हैं. बेसिकली जो हमने यूलर फार्मूला ड्राइव किया था क्रिटिकल लोड के लिए, तो उस क्रिटिकल लोड को PCR को अगर हम यूलर लोड कह दें, PE से हम उसको रिप्रेजेंट कर दें, तो हमारे पास ये बेसिकली इसको हम यूलर लोड कह रहे हैं. जो क्रिटिकल लोड था जो हमने फार्मूला ड्राइव किया था क्रिटिकल लोड के लिए यूलर फार्मूला, उस फार्मूले से जो हमारे पास लोड की वैल्यू आएगी उसको हम यूलर लोड कह देते हैं. बेसिकली हम ये चाह रहे हैं कि जो क्रिटिकल लोड है उसको हम उस फार्मूले से जो लोड आ रहा है उससे हम थोड़ा सा कम कर लें, क्योंकि हमने जो एक्सीडेंटल एसेंट्रिसिटी है या रेजिडुअल स्ट्रेसेस हैं उनका जो इफ़ेक्ट है जो बेंडिंग मोमेंट की फॉर्म में होगा उसको हमने अकाउंट फॉर करना है. तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो फार्मूले से हमारे पास लोड आ रहा है उसको हम यूलर लोड कह रहे हैं, और जो क्रिटिकल लोड है वो हम उस लोड से को फर्दर थोड़ा रिड्यूस करके हम क्रिटिकल लोड कैलकुलेट करेंगे. तो यहाँ पे हमने जो क्रिटिकल लोड का फार्मूला था, क्रिटिकल लोड की बजाय हम उसको अब यूलर लोड कह देते हैं. यहाँ पे P सबस्क्रिप्ट E. दिस इज द क्रिटिकल बकलिंग लोड अकॉर्डिंग टू द यूलर इक्वेशन. ये बेसिकली यूलर इक्वेशन में जो क्रिटिकल बकलिंग लोड था बेसिकली वो है जो हमें यूलर फार्मूले से यूलर इक्वेशन से हमारे पास आएगा. द यूलर स्ट्रेस इज FE. The stress corresponding to this Euler load is Euler stress. Euler stress is represented by F subscript E. तो यूलर स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए हम यूलर लोड को एरिया से डिवाइड करेंगे, और वहाँ पे जो हमने क्रिटिकल लोड के कॉरस्पॉन्डिंग जो क्रिटिकल स्ट्रेस का फार्मूला ड्राइव किया था वो हम जो है वो
यहाँ पे लिख दें। बेसिकली इसी इक्वेशन को हमने रीअरेंज किया, ए यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो वो यूलर स्ट्रेस जो का फार्मूला आ जाएगा। तो ये इक्वेशन जो है वो ए एस स्पेसिफिकेशंस में इसके चैप्टर 3 में इक्वेशन नंबर 3.4 से जो है वो प्रेजेंट की गई है। With a slight modification, this expression will be used for the critical stress in the elastic range. Basically हमने प्रीवियस लेक्चर में यही फार्मूला क्रिटिकल स्ट्रेस के लिए जो वो ड्राइव किया था, लेकिन यहाँ पे हम इस फार्मूले को यूज़ कर रहे हैं यूलर स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए। यूलर स्ट्रेस जो है वो बेसिकली क्रिटिकल स्ट्रेस ही है, लेकिन जो क्रिटिकल स्ट्रेस हमने डिज़ाइन में यूज़ करनी है उसको हम रिड्यूस करना चाह रहे हैं। तो इसलिए हम पहले यूलर स्ट्रेस कैलकुलेट कर लिया यूलर फार्मूला से। इससे स्ट्रेस को हम रिड्यूस करेंगे, कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे क्रिटिकल स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए। टू ऑब्टेन द क्रिटिकल स्ट्रेस फॉर इलास्टिक कॉलम्स, द यूलर स्ट्रेस इज रिड्यूस्ड एज फॉलोज टू अकाउंट फॉर द इफेक्ट ऑफ इनिशियल क्रूप्डनेस। के जो इलास्टिक कॉलम्स हैं मींस क्रिटिकल स्ट्रेस जो है वो कॉलम्स के अंदर प्रोपोर्शनल लिमिट से बिलो है, अगर उस केस में जो है वो हम यूलर स्ट्रेस जो है वो उसको हम रिड्यूस कर रहे हैं। जो इनिशियल क्रूप्डनेस है, इनिशियल आउट ऑफ स्टेटनेस है, या जो कॉलम के अंदर जो टेढ़ापन हो सकता है उस के इफ़ेक्ट को अकाउंट फॉर करने के लिए हम क्रिटिकल स्ट्रेस को थोड़ा सा रिड्यूस कर रहे हैं। ये हमारे पास एफ ई जो है वो हमने पढ़ा था कि ये क्रिटिकल स्ट्रेस है थ्योरेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली हम क्रिटिकल स्ट्रेस को उस फार्मूले से जो स्ट्रेस आ रही है उससे थोड़ा सा रिड्यूस कर रहे हैं। तो क्रिटिकल स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए जो हम यानी यूलर स्ट्रेस को जो है वो जो यूलर फार्मूले से हमारे पास स्ट्रेस आ रही है उसको हमने कुछ रिड्यूस कर लिया है। तो ये हमारे पास जो है वो क्रिटिकल स्ट्रेस है उन कॉलम्स के लिए जिनमें स्ट्रेस जो है वो इलास्टिक रेंज के अंदर है, मींस प्रोपोर्शनल लिमिट से बिलो है। फॉर इन इलास्टिक कॉलम्स द टेंजेंट मॉडुलस इक्वेशन इज रिप्लेस्ड बाय एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ऐसे कॉलम्स जिनमें जो क्रिटिकल स्ट्रेस है वो प्रोपोर्शनल लिमिट से ज़्यादा और यील्ड स्ट्रेस से कम हो, मींस जो स्ट्रेस है ड्यू टू क्रिटिकल लोड वो प्रोपोर्शनल लिमिट और यील्ड स्ट्रेस के दरमियान में किसी रेंज में है, उसके लिए हमने एक यूलर फार्मूला है उसको ड्राइव किया था। वहाँ पे हमने जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी था उसको हमने टेंजेंट मॉडुलस से रिप्लेस किया था। तो इन इलास्टिक कॉलम्स के लिए जो क्रिटिकल स्ट्रेस की इक्वेशन है उसको हम जो है वो उस इक्वेशन को हमने इस इक्वेशन से रिप्लेस कर दी है। बेसिकली ये इस इक्वेशन जो है वो अवेलेबल हैं एएस स्पेसिफिकेशन में। तो इन हमने जो है इक्वेशन जो हमने ड्राइव की थी, जो हमने इन इलास्टिक कॉलम्स के लिए टेंजेंट मॉडुलस वाली जो इक्वेशन थी उसको हमने रिप्लेस कर दिया इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन से। तो हम इस इक्वेशन से एफ सी आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इसमें एफ ई सेम है दोनों इक्वेशंस के अंदर। एफ ई हम इसी फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। इस फार्मूले से कैलकुलेट करने के बाद हम चेक करेंगे कि कॉलम के लिए कौन सा इन दोनों में से 1 और 2 इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन यूज़ होनी है। जो इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगी उसके अंदर हम एफ ई की वैल्यू प्लग इन करके एफ सी आर की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। कि यहाँ पे जो है वो ग्राफ जो है वो आपको नज़र आ रहा है, इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर स्लेंडरनेस रेशियो है और वर्टिकल एक्सिस के ऊपर जो है वो क्रिटिकल स्ट्रेस है। ये ग्राफ हमने जो लास्ट लेक्चर में जो है वो स्टडी किया था। इसमें हमने देखा था कि इलास्टिक बकलिंग है, मीन जब स्ट्रेस प्रोपोर्शनल लिमिट से कम है तो हमारे पास ये कर्व हमारे पास आएगी, और अगर जो क्रिटिकल स्ट्रेस है वो प्रोपोर्शनल लिमिट और यील्ड स्ट्रेस के दरमियान है तो हमारे पास जो है वो ये वाली कर्व आएगी। और ये कर्व्स जो है वो दोनों इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट है, मीन ये इस पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को जो है वो टच कर रही हैं। इस रेंज के अंदर इलास्टिक रेंज के अंदर हमने यूलर फार्मूला में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यूज़ किया था, और इन इलास्टिक जो रेंज है मीन जब स्ट्रेस प्रोपोर्शनल लिमिट और यील्ड स्ट्रेस के दरमियान है तो उस केस में हमने क्रिटिकल स्ट्रेस के फार्मूले में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को जो है वो रिप्लेस किया था टेंजेंट मॉडुलस से। तो इस इक्वेशन को अगर हम
जो भी हमने इक्वेशंस ड्राइव की हैं एफ की, उन इक्वेशन से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास जो है वो ये ग्राफ आएगा। ये इक्वेशन बेसिकली हमने सर यहाँ पे इस इक्वेशन को हमने रिप्लेस कर दिया है इस इक्वेशन से, और जो टेंजेंट मॉडुलस वाली इक्वेशन थी उसको हमने रिप्लेस कर दिया इस इक्वेशन नंबर 2 से। तो अब इन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए वही ग्राफ अगर हम ड्रा करें तो हमारे पास कुछ इस तरह से होगा। इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे स्लेंडरनेस रेशियो है और वर्टिकल एक्सिस पे क्रिटिकल स्ट्रेस है। जो प्रोपोर्शन लिमिट के कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है वो डिवाइडिंग पॉइंट है इलास्टिक रेंज और इन इलास्टिक रेंज के दरमियान, ये एक डिवाइडिंग पॉइंट है। और इसकी पॉइंट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, 4.71 E/Fy अंडर रूट। ये बेसिकली वो वैल्यू है जो कि डिवाइड कर रही है इलास्टिक बकलिंग और इन इलास्टिक बकलिंग को। इस पॉइंट के ऊपर हम दोनों इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, ये वाली भी यूज़ कर सकते हैं और ये वाली भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर स्लेंडरनेस रेशियो इस वैल्यू से कम है तो हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे, और अगर जो स्लेंडरनेस रेशियो है वो इस वैल्यू से ज़्यादा है तो हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। Equation 2 gives direct solution for inelastic columns avoiding the difficulty of trial and error method। जो प्रीवियसली हमने ये वाली इक्वेशन स्टडी की थी जिसमें हमने मॉडुलस टेंजेंट मॉडुलस यूज़ किया था। इस टेंजेंट मॉडुलस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें ट्रायल एंड एरर मेथड जो है वो यूज़ करना पड़ना था। वहाँ पे हमने ई टी की एक वैल्यू अज्यूम करनी थी, फिर हमने क्रिटिकल स्ट्रेस कैलकुलेट करनी थी, फिर क्रिटिकल स्ट्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग ई टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। इस तरह से ये एक ट्रायल एंड एरर जो है वो मेथड यूज़ करना था। लेकिन जो हमने इक्वेशन को रिप्लेस किया है इस इक्वेशन के साथ, इस इक्वेशन में हमें डायरेक्ट जो है वो एफ की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को यूज़ करने से हम जो ट्रायल एंड एरर मेथड की जो डिफ़िकल्टी है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। Boundary between inelastic and elastic columns, equation 1 and equation 2 gives the same value of FCR। मीन यहाँ पे इस पॉइंट जो डिवाइडिंग पॉइंट है जहाँ पे दोनों कर्व्स जो हैं वो टेंजेंट है, उस पॉइंट के ऊपर दोनों फार्मूलाज जो हैं वो सेम वैल्यू देंगे क्रिटिकल स्ट्रेस की। तो आप जो कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। This occurs when KL/R is approximately equal to 4.71 E/Fy अंडर रूट। तो हमारे पास जो डिवाइडिंग पॉइंट है बेसिकली KL/R रेशियो की वो वैल्यू जो कि डिवाइड कर रही है इलास्टिक बकलिंग और इन इलास्टिक बकलिंग को, वो हमारे पास बेसिकली ये है 4.71 E/Fy। तो हम बेसिकली क्या कर रहे होंगे, हम जो सिलेंडरनेस रेशियो है वो कैलकुलेट करेंगे पहले, उसको फिर इस वैल्यू से कंपेयर करेंगे। अगर तो स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू इस वैल्यू से ज़्यादा होगी तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि इलास्टिक बकलिंग के लिए, और अगर ये वैल्यू इससे कम होगी तो हम इन इलास्टिक बकलिंग वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। जो अभी डिस्कशन को अगर हम समराइज़ करते हैं हमारे पास जो वो ये दो कंडीशंस हैं। अगर सिलेंडरनेस रेशियो KL/R इस वैल्यू से डिवाइडिंग जो वैल्यू उससे कम है या उसके इक्वल है तो हम ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे, ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। और अगर KL/R रेशियो 4.71 E/Fy अंडर रूट से ज़्यादा है, मीन जो हमारे पास जो डिवाइडिंग पॉइंट है उससे ज़्यादा है, तो हम जो है वो ये वाली वैल्यू ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो आपने सबसे पहले KL/R रेशियो जो है वो कैलकुलेट करनी है और ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो डिवाइडिंग पॉइंट है हमारा। और कंपैरिजन से आप जो है वो डिटरमिन कर लेंगे इन दोनों इक्वेशंस में से कौन सी इक्वेशन जो है वो एप्लीकेबल है। तो वो इक्वेशन यूज़ करके हम FCR की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। The AIC specifications provides for separating inelastic and elastic behavior based on either the value of KL/R और the value of ratio Fy/Fe। जो AIC स्पेसिफिकेशंस हैं वो इस वैल्यू के अलावा हमें ये वाली वैल्यू इस रेशो से भी दोनों रीजन्स को, इलास्टिक और इन इलास्टिक रीजन्स को सेपरेट जो है वो करती हैं। तो हम दोनों मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। हम KL/R कैलकुलेट करके
उसको इस वैल्यू से कंपैरिजन करके भी डिटरमिन कर सकते हैं कि बकलिंग इलास्टिक है या इन इलास्टिक। और हम जो AIS स्पेसिफिकेशन की दूसरा मेथड है FY/FE रेशो वाला, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो AIS स्पेसिफिकेशंस के अंदर अगर FY/FE जो है वो रेशो 2.25 से कम है या इससे इक्वल है तो जो बकलिंग है वो इन इलास्टिक बकलिंग है, तो हम जो है वो इन इलास्टिक बकलिंग वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। और अगर FY/FE रेशो 2.25 से ज़्यादा है तो हम इलास्टिक बकलिंग वाली इक्वेशन जो है वो यूज़ करेंगे। तो हमारे पास जो है वो दोनों ऑप्शंस हैं। हम KL और R की रेशो को इस वैल्यू से कंपैरिजन करके डिटरमिन कर सकते हैं इन इलास्टिक और इलास्टिक बिहेवियर का, या हम FY/FE रेशो को इस 2.25 की फिगर से कंपेयर करके इलास्टिक और इन इलास्टिक बिहेवियर को डिटरमिन कर सकते हैं। These equations are based on experimental and theoretical studies। जो इक्वेशंस हमने अभी पढ़ी हैं, ये दोनों इक्वेशंस ये वाली, ये बेसिकली थ्योरेटिकल जो है वो जो रिसर्च बेस्ड इक्वेशंस हैं जो कि एक्सपेरिमेंट्स की बेसिस पे और थ्योरेटिकल स्टडीज़ दोनों जो है वो दोनों जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल स्टडीज़ की बेसिस पे जो है वो ये इक्वेशंस जो है वो ड्राइव की गई हैं। इस इक्वेशंस के अंदर जो है वो रेजिडुअल स्ट्रेसेस का जो इफ़ेक्ट है उसको भी अकाउंट फॉर किया गया है। रेजिडुअल स्ट्रेसेस का मतलब जो है कि मेंबर के अंदर लोड अप्लाई होने से पहले जो है वो कुछ स्ट्रेसेस जो हैं वो प्रेजेंट हो सकती हैं। वो रेजिडुअल स्ट्रेसेस जो है वो जब हॉट रोल्ड शेप्स को जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के बाद कूल किया जाता है, सडनली कूल किया जाता है, तो जो सारे एलिमेंट्स हैं उस मेंबर के वो सेम टाइम पे सेम रेट से कूल नहीं होते। कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो जिस तरह टिप्स हैं वो जल्दी कूल हो जाती हैं, और जो जॉइंट्स हैं जिस तरह फ्लेंजेस और वेब का जॉइंट है या एंगल की दो लेग्स का जॉइंट है वो ज़रा लेट जो है वो कूल होंगे। इस अनइवन कूलिंग की वजह से जो है वो स्ट्रेसेस जो है वो प्रोड्यूस हो जाती हैं जो कि हमेशा के लिए उस मेंबर के अंदर जो प्रेजेंट होती हैं। ऐसी स्ट्रेसेस को हम रेजिडुअल स्ट्रेसेस जो है वो कहते हैं। तो अभी जो हमने दो इक्वेशंस पढ़ी हैं क्रिटिकल स्ट्रेस के लिए, वो इन रेजिडुअल स्ट्रेसेस के इफेक्ट को भी अकाउंट फॉर करती हैं। एंड इनिशियल आउट ऑफ स्ट्रेटनेस, जो इनिशियल जो क्रुक्टनेस है या इनिशियल जो टेढ़ापन है कॉलम का, उसको भी अकाउंट फॉर करती हैं। उस टेढ़ापन जो आउट ऑफ स्ट्रेटनेस की वैल्यू है वो L/1500 है, मींस लेंथ डिवाइडेड बाय 1500 की जो इनिशियल डिफ्लेक्शन है या इनिशियल आउट ऑफ स्ट्रेटनेस है उसको ये इक्वेशन जो अकाउंट फॉर करती हैं। Although AIS does not require an upper limit on the slenderness ratio KL/R, an upper limit of 200 is recommended। ओके, जो स्लेंडरनेस रेशियो है उसके ऊपर एक अपर लिमिट जो है वो एक रिकमेंडेड है 200 की। ये रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन ये एक रिकमेंडेड जो है वो लिमिट है। बेसिकली ये एक प्रैक्टिकल अपर लिमिट है, क्योंकि अगर हम ऐसे कंप्रेशन मेंबर यूज़ करेंगे जिनकी स्लेंडरनेस रेशो बहुत ज़्यादा होगी, 200 से ज़्यादा होगी, तो उनकी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत कम होगी। जो हमने ग्राफ स्टडी किया था उसमें हम देख रहे हैं कि जो स्ट्रेंथ है मीन जो क्रिटिकल स्ट्रेस है वो डिक्रीज़ हो रही है विद द इंक्रीज़ इन स्लेंडरनेस रेशो। तो स्लेंडरनेस रेशो अगर 200 से ज़्यादा हम कर लेते हैं तो ये स्ट्रेंथ जो है ये बहुत ही रिड्यूस हो जाती है। तो ऐसे क्रॉस सेक्शन जो हैं वो इकोनॉमिकल नहीं होंगे। तो इसलिए हमने जो है वो जो स्लेंडरनेस रेशो है उसके ऊपर एक अपर लिमिट अप्लाई की है 200 की। मींस हम जो भी क्रॉस सेक्शन यूज़ करेंगे कंप्रेशन मेंबर के लिए उसकी जो स्लेंडरनेस रेशो है वो 200 से कम होनी चाहिए, 200 से ज़्यादा ना हो। ओके, एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल जो है वो उसकी स्टेटमेंट देख लें। A W14/74 of A992 steel has a length of 20 feet and pinned ends. Compute the design compressive strength for LRFD and the allowable compressive strength for ASD।
कि एक हमारे पास जो वो कॉलम क्रॉस सेक्शन गिवन है W14/74, जो स्टील ग्रेड है वो 992 स्टील है, इसकी लेंथ 20 फीट है। हमने डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ LRFD की केस में फाइंड करनी है और ASD की केस में अलाउएबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड करनी है। तो इसका प्रोसीजर जो बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हम स्लैंडरनेस रेशो कैलकुलेट करेंगे। हम जो वो अगर तो दोनों एक्सिस के अबाउट जो है वो जो कनेक्शन है, जो एंड कनेक्शन है वो सेम है, जिस तरह इस केस में हमें दोनों एंड्स पिन कनेक्शन जो वो दिए गए हैं। इसका मतलब है कि स्पेसिफाई नहीं किया गया कि किस एक्सिस के अबाउट किस तरह की सपोर्ट हैं। इसका मतलब है कि दोनों एक्सिस के अबाउट जो है वो पिन कनेक्शन ही है। तो इस केस में हम जो वो जो स्लैंडरनेस रेशो है वो मैक्सिमम स्लैंडरनेस रेशो लेंगे। मैक्सिमम स्लैंडरनेस रेशो के लिए हम जो वो रेडियस ऑफ गायरेशन मिनिमम यूज़ करेंगे, जो आर मिनिमम होगा वो यूज़ करेंगे। इस केस में हमारे पास आर वाई जो है उसकी वैल्यू मिनिमम है। ये वैल्यू आप जो है वो AIS स्टील कंस्ट्रक्शन मैनुअल से जो है वो देख सकते हैं। AIS स्टील कंस्ट्रक्शन मैनुअल हम ओपन करते हैं। यहाँ पे W14/74 जो क्रॉस सेक्शन है ये हम जो है वो सेलेक्ट करते हैं। इसके जो एरिया प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसका जो नेक्स्ट पेज है उसके ऊपर गिवन है। हम नेक्स्ट पेज पे जो आ जाते हैं 74। ये बेसिकली आपके पास यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ये W14/74 है। इसमें आर की वैल्यूज़ गिवन है। एक्स एक्सिस का अबाउट आर की वैल्यू 6.04 है और वाई एक्सिस के अबाउट आर की वैल्यू 2.48 है। तो इसमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हम यूज़ करेंगे। अब चूँकि यहाँ पे आर वाई मिनिमम है तो आर वाई की वैल्यू जो है वो हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आर वाई की वैल्यू हमने पुट की 2.48 और हमने स्लैंडरनेस रेशो कैलकुलेट कर ली। अब स्लैंडरनेस रेशो को हमने कंपेयर करना 200 के साथ। अगर तो 200 से कम है तो इसकी मतलब यह है कि जो क्रॉस सेक्शन यूज़ किया जा रहा है वो ओके है, स्लैंडरनेस रेशो जो है वो उसकी ओके है। उसके बाद हम जो डिवाइडिंग पॉइंट था इलास्टिक और इन इलास्टिक बकलिंग, वो पॉइंट कैलकुलेट करके जो है वो हम डिटरमिन करेंगे कि बकलिंग इलास्टिक है या इन इलास्टिक है। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट फिगर है, फार्मूला है जो कि डिपेंड कर रहा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी A992 स्टील का 29,000 है। बेसिकली ये जो भी ग्रेड हो स्टील का उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 29,000 ही होगा। और A992 स्टील का जो ग्रेड है, जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो 50 की SI है। तो ये वैल्यूज़ पुट करके हम जो है वो इस वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे डिवाइडिंग पॉइंट की। ओके, उसके बाद हम जो स्लैंडरनेस रेशो कैलकुलेट किए है जो कि हमारे पास 96.77 है, इसको हम कंपेयर करेंगे इस डिवाइडिंग पॉइंट के साथ, जिससे हम डिटरमिन करेंगे कि इलास्टिक बकलिंग है या इन इलास्टिक बकलिंग है। तो बाय कंपैरिजन यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो स्लैंडरनेस रेशियो की वैल्यू है वो इस डिवाइडिंग पॉइंट से कम है। इट मीन्स जो बकलिंग है वो इन इलास्टिक रीजन के अंदर है। तो इन इलास्टिक रीजन के लिए जो है वो हमने जो इक्वेशन जो है वो स्टडी किया वो हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले यूलर स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे एफ ई का फार्मूला सेम है इलास्टिक और इन इलास्टिक दोनों रेंजेस के लिए। वो फार्मूला जो है वो यूज़ करके हम पहले जो है वो यूलर स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे। यूलर स्ट्रेस कैलकुलेट करने के बाद हम जो है वो इन इलास्टिक बकलिंग वाली जो क्रिटिकल स्ट्रेस की इक्वेशन है वो यूज़ करेंगे, उसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे, हम जो है वो FCR की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह से आप जो है वो क्रिटिकल स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे। क्रिटिकल स्ट्रेस कैलकुलेट करने के बाद हम नॉमिनल स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे। नॉमिनल स्ट्रेंथ का फार्मूला हमारे पास है PN = FCR/AG। इसमें PN जो नॉमिनल स्ट्रेंथ है, FCR क्रिटिकल स्ट्रेस है जो कि हमने प्रीवियस स्टेप में कैलकुलेट की है जो कि 25.21 है। और AG इज़ द ग्रॉस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ग्रॉस एरिया जो वो हमें मैनुअल से जो हम ले सकते हैं, मैनुअल में जो है वो W14/74 का जो एरिया है वो
21.8 इंच स्क्वायर है, 21.8 इंच स्क्वायर ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ से आपके पास जो है वो नॉमिनल स्ट्रेंथ आ जाएगी। नॉमिनल स्ट्रेंथ जो है वो ASD और LRFD केस में सेम ही होती है। तो जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ है LRFD के केस में, उसके लिए हमने जो है वो 5CPN = 5CPN जो है वो वैल्यू पुट करके जो है वो कैलकुलेट करेंगे, या डायरेक्टली आप 5CFCR-AG जो यूज़ कर सकते हैं। 5FCR-AG के साथ हम जो 5C की वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास डिज़ाइन स्ट्रेंथ आ जाएगी। ओके, इन दिस एग्जांपल RY इज़ लेस देन RX। इस एग्जांपल में जो रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट Y एक्सिस है वो RX से कम है। तो इसका मतलब यह है कि जो X एक्सिस के अबाउट X डायरेक्शन में जो स्ट्रेंथ है वो RY से काफ़ी ज़्यादा होगी, जो कि एक्सेस है, जो कि हम यूटिलाइज़ नहीं हो रही, क्योंकि स्ट्रेंथ तो वही यूटिलाइज़ होगी जो मिनिमम वैल्यू है। तो इसका मतलब यह है कि जो RX की वजह से X डायरेक्शन में जो एक्सेस स्ट्रेंथ है वो यूटिलाइज़ नहीं हो रही। तो जो स्ट्रक्चरल ट्यूब्स हैं, स्क्वायर स्ट्रक्चरल ट्यूब्स जिसको हॉलो स्ट्रक्चरल शेप्स हम कहते हैं, वो एफिशिएंट शेप्स हैं कंप्रेशन मेंबर्स के लिए, क्योंकि उनका जो RX और RY सेम है और जो स्ट्रेंथ है वो दोनों डायरेक्शन में सेम है। तो कंप्रेशन मेंबर्स के लिए हम जो है वो प्रेफर करेंगे एक ऐसा सेक्शन जिसमें RY और RX के दरमियान डिफरेंस जो है वो कम से कम हो, ताकि वो सेक्शन जो वो इकोनॉमिकल रहे। ओके, इसको यहाँ पे आप अलाउएबल लोड कैलकुलेट कर सकते हैं, अलाउएबल स्ट्रेंथ ASD मेथड यूज़ करते हुए। वहाँ पे आप जो है वो PN/ωc जो है वो कैलकुलेट करेंगे। PN/ωc, PN की यही वैल्यू यूज़ करेंगे और ωc जो है वो 1.67 है। तो PN/ωc से आपके पास जो है वो अलाउएबल स्ट्रेंथ फॉर ASD जो है वो आ जाएगी। तो इस तरह से आप किसी भी कंप्रेशन मेंबर की जो स्ट्रेंथ है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ लोकल स्टेबिलिटी। लोकल स्टेबिलिटी देख लेते हैं। हमारे पास जो वो ये क्या है, द स्ट्रेंथ करस्पॉन्डिंग टू एनी बकलिंग मोड कैन नॉट बी डेवलप्ड, हाउएवर इफ द एलिमेंट्स ऑफ द क्रॉस सेक्शन आर सो थिन दैट लोकल बकलिंग ऑकर्स। अगर जो क्रॉस सेक्शन हमने यूज़ किया है एज ए कंप्रेशन मेंबर, उसके जो एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम जो वो W सेक्शन यूज़ कर रहे हैं तो W सेक्शन के जो एलिमेंट्स हैं वो फ्लैंजेस हैं और वेब है। उनमें से कोई एक एलिमेंट जो वो इतना थिन है कि वो लोकली बकल जो है वो कर गया, मींस ओवरऑल कॉलम बकल नहीं हो रहा, लेकिन वो एक एलिमेंट को एक फ्लैंज किसी एक जगह से या वेब जो किसी एक जगह से बकल कर गया। तो जो स्ट्रेंथ हमने कैलकुलेट की है प्रीवियसली फार्मूला से वो वैलिड नहीं होगी, स्ट्रेंथ उससे कम रह जाएगी। दिस टाइप ऑफ इनस्टेबिलिटी इज़ ए लोकलाइज्ड बकलिंग और रिंकलिंग एट एन आइसोलेटेड लोकेशन। ये किसी एक पॉइंट के ऊपर लोकलाइज्ड जो इनस्टेबिलिटी है, जो एलिमेंट है वो किसी एक पॉइंट के ऊपर लोकली बकल कर जाए। लोकल बकलिंग ऑफ फ्लैंज एंड वेब इज शोन इन नेक्स्ट स्लाइड में आपको जो है वो फिगर में जो वो नज़र आएगा। फ्लैंज और वेब के अंदर लोकल बकलिंग किस तरह से हो सकती है। इफ़ इट ऑकर्स द क्रॉस सेक्शन इज़ नो लॉन्गर फुली इफेक्टिव एंड द मेंबर हैज़ फेल्ड। अगर लोकल बकलिंग जो वो प्रोड्यूस हो जाए तो जो क्रॉस सेक्शन है वो इफ़ेक्टिव नहीं रहता, और जो हमने स्ट्रेंथ कैलकुलेट की है वो स्ट्रेंथ जो है वो वैलिड नहीं रहती, मेंबर जो है वो उसको वो फेल हो जाता है। कि यहाँ पे लोकल बकलिंग को देख लें। एक W सेक्शन के फ्लैंज की लोकल बकलिंग आपको जो वो नज़र आ रही है। ये अब यहाँ पे आप देखें, ये फ्लैंज जो है वो लोकली बकल कर गया। ओवरऑल जो मेंबर है वो स्ट्रेट है, लेकिन फ्लैंज किसी एक लोकेशन से बकल कर गया। यहाँ पे इस फिगर में देख लें, यहाँ पे ये W सेक्शन जो यूज़ किया जा रहा था, ये जो है वो लोकली यहाँ पे फ्लैंज जो वो बकल कर गया है। बेसिकली ये एक एज ए बीम यूज़ हो रहा है, लेकिन कॉलम के केस में भी इसी तरह का की बकलिंग जो है वो हो सकती है। तो इस बकलिंग को हम जो है वो लोकल बकलिंग या लोकल इनस्टेबिलिटी कहते हैं। ये फ्लैंज के अंदर है लोकल बकलिंग,
वेब के अंदर लोकल बकलिंग जो है वो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे वेब जो है वो लोकली बकल कर गया। ये बेसिकली बेंडिंग बीम है जो कि बेंडिंग लोड के अंडर है, लेकिन कॉलम के अंदर भी जो है वो वेब जो है वो लोकल बकलिंग हो सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीम जो बेंड नहीं हुआ ओवरऑल, लेकिन जो वेब है वो बकल कर गया, रैप कर गया। तो इस तरह की इनस्टेबिलिटी को हम लोकल इनस्टेबिलिटी कहते हैं। तो जो भी मेंबर हमने यूज़ करना है एज ए कंप्रेशन मेंबर, उसको हमने चेक करना है कि वो लोकली स्टेबल है या नहीं। I and H shaped cross sections with thin flanges or webs are susceptible to this phenomenon and their use should be avoided whenever possible। जो या H shapes हैं जिसमें S सेक्शन है या W सेक्शन है, ये बिल्ट अप शेप्स हैं जो कि H या I की फॉर्म में होती हैं, मींस जो जिनमें फ्लैंजेस और वेब्स जो है वो होते हैं। तो ये जो है वो शेप्स जो है वो इस फिनोमेना इनमें इनके अंदर लोकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है। तो अगर ऐसा कोई सेक्शन है जो कि जो ससेप्टिबल है लोकल स्टेबिलिटी के लिए, तो ऐसे सेक्शन को हम जो अवॉइड करेंगे, उसका यूज़ जो है वो हम अवॉइड करेंगे। अगर हम उसको यूज़ करना चाह रहे हैं तो जो प्रीवियसली जो हमने इक्वेशंस स्टडी की हैं FCR की, उनको हमने मॉडिफाई करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। द मेजर ऑफ दिस ससेप्टिबिलिटी इज़ द विड्थ टू थिकनेस रेशियो ऑफ ईच क्रॉस सेक्शन एलिमेंट। ओके, हम डिटरमिन कैसे करेंगे, मेजर कैसे करेंगे कि कोई भी एलिमेंट जो है वो लोकली इनस्टेबल है या स्टेबल, उसके लिए हम जो विड्थ टू थिकनेस रेशियो उस क्रॉस सेक्शन एलिमेंट की कैलकुलेट करेंगे। तो विड्थ और थिकनेस रेशियो जो हमारे पास एक मेजरमेंट है लोकल स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी के लिए। ओके, जब हम लोकल इंस्टेबिलिटी करेंगे तो हमने दो तरह के एलिमेंट्स को कंसिडर करने हैं। अनस्टीफन्ड एलिमेंट्स विच आर सपोर्टेड अलोंग वन एज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ लोड। अनस्टीफन्ड एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जो कि सिर्फ एक एज पे सपोर्टेड हैं। स्टीफन्ड एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जो कि दोनों एजेस के ऊपर जो है वो सपोर्टेड हैं। स्टीफन्ड और अनस्टीफन्ड एलिमेंट्स की इलस्ट्रेशन जो वो यहाँ पे इस फिगर में आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल एक वेब W सेक्शन अगर आप जो है वो कंसिडर करते हैं, W सेक्शन के जो फ्लैंजेस हैं, फ्लैंजेस के जो प्रोजेक्शंस हैं दोनों साइड पे, वो अनस्टीफन्ड एलिमेंट, क्योंकि ये एक ही एज के ऊपर जो है वो सपोर्टेड हैं, ये इस एज के ऊपर जो है वो कनेक्टेड हैं, सपोर्टेड हैं वेब के साथ। दूसरा जो ये वाला एज है ये फ्री है, या दूसरे फ्लैंज का आप देख सकते हैं दोनों फ्लैंजेस के जो एंड्स हैं वो एक एज जो वो फ्री है, दूसरा जो एज है वो कनेक्टेड है वेब के साथ। तो ऐसे एलिमेंट्स जो जिनका एक एज जो वो सपोर्टेड हो और दूसरा एज फ्री हो, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम अनस्टीफन्ड एलिमेंट्स कहते हैं। जबकि वो एलिमेंट्स जिनके दोनों एजेस जो हैं वो सपोर्टेड हैं, इस तरह यहाँ पे वेब के दोनों एजेस जो हैं वो सपोर्टेड हैं, फ्लैंजेस के साथ कनेक्टेड हैं, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम स्टीफन्ड एलिमेंट कहेंगे। एंगल सेक्शन को आप कंसिडर करते हैं तो एंगल सेक्शन की जो दोनों लेग्स हैं वो दोनों एंड्स के ऊपर, जो एक एंड्स के ऊपर जो दोनों लेग्स जो हैं वो फ्री हैं और एक एज के ऊपर दोनों जो है वो कनेक्टेड हैं या सपोर्टेड हैं। तो इस एंगल सेक्शन की जो दोनों लेग्स हैं वो भी अनस्टीफन्ड एलिमेंट हैं। तो लोकल स्टेबिलिटी जब हम चेक कर रहे होंगे तो हमने एलिमेंट्स को जो वो डिटरमिन करना है कि अनस्टीफन्ड एलिमेंट है या स्टीफन्ड एलिमेंट है, दोनों के लिए हमने सेपरेटली जो है वो डिटरमिन करना है लोकल इंस्टेबिलिटी। Limiting values of width to thickness ratios are given in AISC B4 classification of section for local buckling। इस टॉपिक के अंदर जब वो B जो चैप्टर है उसमें इस टॉपिक के अंदर जो वो लिमिटिंग विड्थ टू थिकनेस रेशियोज़ गिवन हैं, हम जो वो उन लिमिटिंग वैल्यूज़ के साथ एक्चुअल विड्थ टू थिकनेस रेशियोज़ को कंपेयर करके जो है वो डिटरमिन करेंगे कि सेक्शन जो वो लोकली स्टेबल है या इनस्टेबल है। For uniformly compressed elements as an axially loaded compression member, the strength must be reduced if shapes have any cylinder elements। ओके, ऐसे एलिमेंट जो कि यूनिफॉर्मली कंप्रेस्ड हैं, यूनिफॉर्मली कंप्रेस्ड एलिमेंट जो एक्सियली लोडेड कॉलम के अंदर होंगे, एक्सियली लोडेड कंप्रेशन मेंबर के जो एलिमेंट्स होंगे वो यूनिफॉर्मली कंप्रेस्ड होंगे। तो इस तरह के केस में अगर कोई एलिमेंट जो वो सिलेंडर है, मीन जिसकी विड्थ टू थिकनेस रेशो लिमिटिंग विड्थ टू थिकनेस रेशो से ज़्यादा है, उसको हम जो वो सिलेंडर का एलिमेंट कहेंगे।
और अगर विड्थ टू थिकनेस रेशियो लिमिटिंग वैल्यू से कम है तो उसका नॉन सिलेंडर एलिमेंट कहेंगे। तो हमने जो है वो चेक करना है, अगर तो एलिमेंट जो है वो सिलेंडर है, मीन विड्थ टू थिकनेस रेशियो अगर लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा है तो हमने जो स्ट्रेंथ है उसको हमने रिड्यूस करना है। प्रीवियसली हमने जो FCR कैलकुलेट किया है वो FCR की वैल्यूज़ को हमने डिज़ाइन में रिड्यूस करना है। द विड्थ टू थिकनेस रेशियो इज़ गिवन द जेनेरिक नेम ऑफ लैम्डा। जो किसी भी एलिमेंट की विड्थ टू थिकनेस रेशियो है उसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। Depending on the particular cross section element, lambda for I and H shapes is either the ratio B over T और H over T। I और H shapes के लिए जो हम दो तरह की जो वो रेशियोज़ कैलकुलेट, लैम्डा की दो वैल्यूज़ होंगी, एक फ्लैंज के लिए होगी और एक वेब के लिए होगी। फ्लैंज के लिए जो वो B over T होगी और H के जो वेब है उसके लिए H over TW। इसमें H जो वो हाइट है वेब की और TW थिकनेस है वेब की। तो इन पैरामीटर्स को जब नेक्स्ट स्लाइड्स में हम डिफाइन करेंगे ये किस तरह से जो है वो आपने यूज़ करने हैं। इफ़ लैम्डा इज़ ग्रेटर दैन दिस स्पेसिफाइड लिमिट डिनोटेड बाई लैम्डा आर, जो लिमिट है विड्थ टू थिकनेस रेशियोज़ की उसको हम लैम्डा आर से जो वो रिप्रेजेंट करेंगे। तो लैम्डा को हम कंपेयर करेंगे लैम्डा आर से। अगर तो लैम्डा की वैल्यू लैम्डा आर से ज़्यादा है तो शेप सिलेंडर है और उसमें लोकल बकलिंग के चांसेस जो हैं वो प्रेजेंट हैं। For I and H shapes, the projecting flange is considered to be an unstiffened element। जो projecting flange है उसको हम जो वो अनस्टिफेंड एलिमेंट कंसिडर करेंगे। इस तरह यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है फ्लैंज जो है वो एक एज पे कनेक्टेड है, दूसरे एज से फ्री है, तो इसका मतलब ये अनस्टिफेंड एलिमेंट है। तो I या H शेप्स जिनके अंदर W सेक्शंस आते हैं, S सेक्शंस हैं या बिल्टअप शेप्स हैं,